کیا یہاں سب اسٹے کر رہے ہیں؟ تو اس نے اسے کہا، نہیں، صرف ہم دونوں۔ پر کیوں؟ سب کہاں چلے گئے؟ اور ہمیں کیوں نہیں لے کے گئے؟ مجھے نہیں پتا، دماغ مت کھاؤ۔ اور دروازے میں چابی لگانے لگا۔ روم میں آتے ہی حدید تو بستر پر گر گیا، جبکہ وہ روم میں نظر گھمانے لگی۔ ایک بیڈ اور ٹیبل کرسی سے روم سجا تھا۔ ایک طرف ان لوگوں کا بیگ پڑا تھا۔ زنین نے کھولا، اس میں سے نائٹ ڈریس نکالا۔ وہ فریش ہو کے باہر آئی تو نظر انگیٹھی پر پڑی، کیونکہ سردی شدید تھی، مگر ہمت نہ تھی جلانے کی، اس لیے بیڈ پر درمیان میں تکیہ دھرا اور سونے لیٹ گئی۔ زنین کی آنکھ کسی کے لمس سے کھلی تھی، پر اس سے پہلے کہ وہ مزاحمت کرتی گرفت مضبوط ہو گئی۔ زنین کی آنکھ کھلی تو حدید پہ نظر پڑی، جو سکون سے سو رہا تھا۔ اس کا دل چاہا اس کا منہ توڑ دے، جو ہر کام اپنی مرضی سے کرتا۔ اس کا وجود بھی حاصل کیا تو اس کی مرضی کے بغیر۔ صبح ہوتے ہی زنین نے نرمین لوگوں سے رابطہ کیا۔ جب حدید نے اسے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا اور ساتھ میں شاپنگ بیگ بھی پکڑائے، جو اس نے چپ چاپ پکڑ لیے، زنین جیسے ہی اپنے گروپ کے پاس پہنچی، جی چاہا اونچا اونچا روئے، کیونکہ آج اس کا اپنی ذات کا غرور ٹوٹا تھا۔ جب حدید نے بولا، یہ تو تمہاری خواہش تھی جو میں نے پوری کی، ورنہ تم میں ہے ہی کیا جو میں تمہاری چاہ کروں۔ وہ تھوڑی دیر وہاں بیٹھی، پھر تھوڑی دیر میں آتی ہوں بول کے چلنے لگی، جب کسی نے اس کا بازو زور سے پکڑ کے کھینچا تھا۔ اس نے اس اچانک حملے پہ رخ موڑ کے دیکھا جہاں ایشل لال چہرہ لیے کھڑی تھی، تو اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تو ایشل ہاتھ لہرا کے بولی، ویسے تو بہت شریف بنتی ہو، پر حدید سر کے ساتھ پوری رات کہاں تھی تم؟ سب کو تم بنا سکتی ہو، مجھے نہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے تم لوگ ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ ہاں، تمہیں انکار کب کر رہی ہوں تھی میں سر کے ساتھ۔ تو زنین نے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا۔ کس رشتے سے؟ ایشل نے سوال کیا۔ پوچھ لینا اپنے سر سے ہی، جان چھڑا کے آ گئی۔ وہ تھوڑی دیر اکیلا رہنا چاہتی تھی۔ وہ چلتے چلتے دور نکل آئی تھی۔ جب واپس جانے لگی تو بھول گیا جانا کہاں ہے۔ نرمین لوگوں کو کال کی اور بتایا راستہ بھولنے کا۔ اتنے میں حدید کی کال آنے لگی، جسے اس نے اگنور کیا۔ 20 منٹ کے بعد حدید اس تک پہنچا تھا۔ آتے ہی ایک رکھ کے تھپڑ لگایا، تم خود کو کیا سمجھتی ہو؟ بہت بڑی توپ چیز ہو جسے ڈھونڈنے سارے خوار ہوں گے؟ نکل آؤ اپنی فلموں اور ڈراموں کی دنیا سے اور بند کرو فضول کی ایکٹنگ۔ اس کے الفاظ نے اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر دی۔ وہ اس کے ساتھ گھسٹتی چل رہی تھی۔ حدید نے گاڑی کے پاس پہنچ کے اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ خاموشی سے جا کے ریتا کے پاس بیٹھ گئی۔ سب انجوائے کر رہے تھے۔ جب شعر و شاعری کا مقابلہ ہونے لگا، جب زنین کی باری آئی تو اس نے شعر پڑھا، سنا تھا عشق بے پرواہ ہوتا ہے، پر جب خود پہ قیامت ٹوٹی تو جانا ہم نے، یہ بے پرواہ نہیں، یہ تو قاتل ہوتا ہے، کسی کی انا کسی کی خودداری کا، یہ تو ہر احساس ختم کرتا ہے، ایک احساس اپنا کرتا ہے، یہ عشق حقیقی ہو تو شان بڑھاتا ہے، یہ عشق مجازی ہو تو سرے بازار رسوا کر جاتا ہے، یہ کبھی خود ہی ہنساتا ہے کبھی رلاتا ہے، عشق قیدی بنا مرے سولی چڑھ جاتا ہے۔ حدید نے چونک کر اسے دیکھا، مگر وہ نرمین کی بات سن رہی تھی۔ یوں ہی موج مست کرتے وہ نتھیا گلی پہنچ گئے۔ سب انجوائے کر رہے تھے۔ ایک وہی تھی جس کا دل نہیں لگ رہا تھا کسی چیز میں بھی۔ کب وہ تینوں اس سے جدا ہوئیں اسے پتہ نہ چلا۔ وہ یوں ہی چل رہی تھی۔ حدید نے اس کا راستہ روکا، تم نے ایشل سے کیا بکواس کی ہے؟ تو اس نے سوالیہ نگاہیں اٹھائیں۔ وہ میرے پاس آئی تھی اور کہا کہ تم مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تم نے اس سے کیوں بولا کہ رات کو تم میرے ساتھ تھی؟ اس نے پوچھا تو میں نے جواب دے دیا۔ ٹینشن مت لیں، وہ بودر نہیں کرے گی۔ آپ جب بولیں گے شادی کے لیے تیار ہو جائے گی، آپ کو آپ کے جیسی مل جائے گی۔ چلو میرے ساتھ۔ حدید نے اس کو کھینچا اور سامنے ایشل کے پاس آیا۔ مس ایشل، آپ کچھ دیر پہلے آئی تھی، جو بات آپ نے کی وہ سچ ہے۔ میں اور یہ ساتھ ہی تھے، اور کیوں نہ ہوتے، شادی کے بعد اب ہی تو موقع ملا، ورنہ ہم تو کہیں گھومنے ہی نہیں گئے۔ اور زنین کے کندھے پہ بازو رکھا۔ شی از مائی وائف، ناٹ جسٹ وائف، آلسو لو آف مائی لائف۔ اور انہیں حیران چھوڑ کے چل دیا۔ زرین نے مڑتے ہی اس کا بازو جھٹکا اپنے گرد سے اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ہوٹل پہنچ کے سب نے بستر سنبھالے اور سو گئے۔ حدید کی پوری رات کروٹ بدلتے گزر گئی۔ اسے رہ رہ کے اپنی بے اختیاری پر غصہ تھا۔ اس نے زنین کی ذات کو توڑا تھا اور اوپر سے جھنجھلاہٹ میں اپنے الفاظ سے اس کی روح کو تکلیف پہنچائی تھی۔ اسے خود سے نفرت ہو رہی تھی۔ امریکہ میں رہ کے بھی اس نے خود کو برائی سے دور رکھا
और नफ्स को कंट्रोल में रखा। पर कल की अपनी हरकत इसे अपने मुंह पर तमाचा लगी थी। आज इसका ज़मीर इसे मलामत कर रहा था। इससे जो 7 साल पहले गलती सरसद हुई थी, इसी वजह से वो ज़न्नैन से फ़ासला कायम रखता, क्योंकि इसकी मासूमियत और लापरवाह सी आदत इसे बहुत पहले ही अपने शिकंजे में जकड़ना शुरू कर दिया था। इसके साथ रहते इसे ये तो अंदाज़ा हो गया था कि वो इसे पसंद करती है, पर मोहब्बत करती है, ये इसके लैपटॉप में मौजूद अपनी तस्वीरों से हुआ, जिन पर उसने कोई ना कोई कमेंट लिखा हुआ था। कई तस्वीरों को एडिट करके अपनी तस्वीरों के साथ जोड़ा गया था, और वो उसने इसकी मोहब्बत का सिला सिर्फ अपनी जारहियत से दिया था। वो शायद खुद को बावर ही नहीं कराना चाहता था कि वो भी इसमें इन्वॉल्व होने लगा था। चाह के भी ये ना बयान कर सकता था कि मुझे तुम्हारे वजूद की चाह होने लगी है। इसीलिए जो हक प्यार से मांगना चाहिए था, वो छीन के हासिल किया। और जो मोहब्बत से निगाह चुराते हैं, शायद हदीद की तरह ही बिखरते हैं। वापसी का सफ़र यादें समेटते गुजर गया। कई लोगों ने लव कन्फेशन भी किया, कई नए दिल जुड़े तो कहीं टूटे। ऐशा जाते होते जितनी खुश थी, वापसी पे इतनी ही दुखी थी। दुखी तो ज़न्नैन भी थी, मगर खुश दिखने की कोशिश कर रही थी। घर वापसी पे एक अच्छी खबर इन लोगों की मुंतज़िर थी। आका जान ने नरमीन की मंगनी का ऐलान कर दिया था। ज़न्नैन भी सब बुला के मंगनी की तैयारियों में बिज़ी हो गई। यूनी से वापसी पे वो तीनों शॉपिंग पे निकल खड़ी होती, क्योंकि एक हफ्ता दिया था आका जान ने, इसी में सब कुछ मैनेज करना था। इसलिए वो सब घन चक्कर बनी हुई थी इन दिनों। अब भी आका जान की इजाज़त से वो लोग दाऊद के साथ मंगनी के लिए लहंगा पसंद करने आए हुए थे। एक को पसंद आता, दूसरा रिजेक्ट कर देता। इसी चक्कर में 3-4 घंटों से वो सब खुमार हो रहे थे। ज़रनैन ने भूख की रट लगाई थी, इसलिए पहले पेट पूजा करने के लिए होटल आ गए। अभी वो लोग आके बैठे ही थे कि हदीद भी आता नजर आया। ज़रनैन ने इसे देख के सवालिया नज़रों से दोनों घुड़ियों को देखा, जो गड़बड़ा गईं। वो असल में भाई की पसंद अच्छी है, इसलिए बुला लिया। तो ज़रनैन खामोशी से खाने पर झुक गई। जब हदीद इसके साथ वाली सीट घसीट के बैठ गया, तो उसने सर उठा के ना देखा। वो जब से मरी से वापस आई थी, हदीद से हम कलाम ना हुई। दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे, जिसमें ना इसको हदीद की परवाह ही रही थी, ना हदीद को इसकी। अब भी हदीद सबसे खुशगपियों में मसरूफ़ था, जबकि ज़रनैन खाने में जैसे इसके बाद तो खाना मिलेगा ही नहीं। ये हदीद का पर्सनल व्यू था ज़रनैन के बारे में। खाना खा के फिर से शॉपिंग सेंटर सब घुस गए। अल्लाह अल्लाह करके सबकी मुश्तरका राय से गोल्डन कलर का लहंगा पसंद आया और जान छूटी सबकी। मैचिंग ज्वेलरी ली गई, तब कहीं जाके शॉपिंग कंप्लीट हुई और सब घर पहुंचे, थक हार के और सोने वाली थी, क्योंकि सुबह असाइनमेंट भी जमा करानी थी सबने। ज़रनैन हदीद की क्लास बंक करके स्कूल से कैंटीन जा रही थी, जब किसी से ज़ोरदार टक्कर हुई और तमाम नोट्स बिखर गए। वो जो कोई भी था, ज़रनैन ने गुस्से से देखा तो उसने जल्दी से सॉरी बोला और साथ ही अपना नाम भी बताया। हाय, मैं असद। ज़रनैन ने घूर के देखा। तो मैं क्या करूं? तो मिस्टर असद शर्मिंदगी से यहाँ वहाँ देखने लगा। वो असल में मैं यहाँ न्यू कमर हूँ, तो आप मुझे इंग्लिश डिपार्टमेंट बता दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उसने आज से ये इख्तियार की, तो जैसे ज़रनैन को शरारत सूझी। आइए मेरे साथ, और इसे घुमा फिरा के एक रूम के सामने लाई और बोली, जी यही HOT बैठते हैं। ज़रनैन ने मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़े। असद जैसे ही रूम में गया, ज़रनैन ने कुंडी चढ़ा दी। वो एक स्टोर रूम था, जिसमें इससे पहले भी कईयों को बकरा बनाया गया था। खुद को दाद देती कैंटीन आ गई। क्लास ख़त्म होने पर वो तीनों इसके सर पर सवार हुई। क्या तकलीफ थी, क्यों क्लास बंक की? तो ज़रनैन ने लापरवाही से कंधे उचकाए। मूड नहीं था मिस्टर सरू को देखने का, तो उन्होंने आंखें निकाली। शर्म कर लो, तुम्हारा शौहर इनामदार है। तो उसने बुरा सा मुंह बनाया, जब धप करके कोई चेयर घसीट के बैठ गया। हाय मिस। तो ज़रनैन ने आंखें फाड़ के देखा, तो वो इसकी आंखों के आगे हाथ लहरा के बोला, इतनी हैरानगी में असद पहचाना नहीं। आपने HOD का रूम बताया था, बहुत शुक्रिया। आती मदद का आप ना होती तो मैं मिल ही ना पाता। तो ज़रनैन ने बिना शर्मिंदा हुए कहा, कोई बात नहीं, छोटी मोटी नेकियां करती रहती। मैं आप शुक्रिया करके मेरी नेकी ना ज़ाया करे। जो इसे शर्मिंदा करने आया था, अब हुक्म की तरह इसे देख रहा था, पर वहाँ तो दुनिया भर की आजिज़ी छाई थी, और इसके इस अंदाज पे कह कहा भी निकल गया, और इसके आगे झुकते हुए बोला,
वैसे लगता आपने शर्मिंदा होना नहीं सीखा। तो जन्नैन ने चिढ़ाते हुए हंस के इस बात में सर हिलाया। हदीद ने दूर से जन्नैन के साथ असद को अचंभे से देखा और सोचने लगा, ये मोहतरम कौन? जब एशल जो किसी काम से हदीद के पास आई थी, उसने बगौर हदीद का मुशाहिदा किया और कहने लगी, ये असद है, न्यू माइग्रेट होके आया है। शायद पुराना क्लोज फ्रेंड होगा, क्योंकि जन्नैन ने आज पीरियड बंक किया था, इसी के साथ ही पूरा पीरियड। तो हदीद ने मुट्ठियाँ भींच के गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश की और एशल अपने वार की कामयाबी पे मसरूर होती चली गई। वो दोनों जैसे ही घर पहुंचे, सरीन शाह को मुंतजिर पाया। जन्नैन तो देखते ही मिलने को भागी। जब ठोकर लग के गिरने लगी तो हदीद ने जल्दी से बाजू पकड़, जिसे जन्नैन एक झटके से परे किया और सरीन शाह के गले लग गई। तो सना ने इसे परे हटाया। इन पर सबका हक है, हमें भी मिलने दो, कब्जा ग्रुप कहेंगी। तो वो मुंह बनाते दूर हुई और चुटकी काटना नहीं भूली। दर्द से वो बिलबिला उठे, जबकि जन्नैन रोम में दौड़ गई। दोपहर का खाना खा के सब बातों में मसरूफ थे। सरीन ने सबको मुतवज्जा किया और हदीद से जन्नैन के साथ भेजने की दरख्वास्त की। जब जन्नैन ने बात में टांग अड़ाना ज़रूरी समझा, अम्मू जान, मैं और इजाज़त किसी और से मैं चल रही हूँ आपके साथ। जब सरीन ने तंबिया निगाह इस पे डाली तो वो गिड़बड़ा के बोली, मेरा मतलब था इनका क्या एतराज़, ये तो मुझे नहीं रोकते कहीं से भी। और कहने लगी, मैं बैग लेके आती, आप बैठें। जबकि सरीन शाह ने इसके अंदाज पे सर पकड़ा, जबकि हदीद भी इसके पीछे गया। हदीद जब रूम में आया तो देखा मैम अपनी मंगनी पर पहनने वाले सूट बैग में रख रही थी। जब हदीद ने हाथ पकड़ के खींचा तो जन्नैन ने अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की और तड़क कर बोली, छोड़े मेरा हाथ, क्या मसला है आपको? तो हदीद ने इसे कंधे से पकड़ के झंझोड़ा, तुम हो मसला मेरा। आनी से राज़ी होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि मैं अपने बाप का कत्ल भूल चुका हूँ और तुम अपने बाप से मिल सकती हो। मैं अब भी तुम्हारे बाप से नफ़रत करता और कभी भी इसे माफ़ नहीं करूँगा। और तुम मेरे साथ ही इस घर में जाओगी, मेरे साथ ही आओगी, वो भी जस्ट मंगनी पर। और तुम्हारे साथ मेरी मोहब्बत की शादी नहीं, जो मैं मोहब्बत में आकर तुम्हें हर चीज़ की इजाज़त दूँ। मेरी पाबंद हो, तुम इतना अपने छोटे से दिमाग में बिठा लो। और आइंदा मेरा हाथ झटका ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। हर एहतियात रखता हूँ तुम पे, तुम्हारा हाथ पकड़ने का भी और तुम्हें छूने का, जिस तरह चाहूँ। इसको झटके से परे करते हदीद ने इसकी अहमियत इससे जतलाई और बाहर चला गया। जन्नैन जब बाहर आई तो सरीन ने इसे गले से लगाया। बेटा, शोहर की बात मानने में अच्छी बीवियों की इज्जत है। अपने घर खुश रहो, आबाद रहो। तुम तो खुशकिस्मत हो, तुम्हारा शोहर तुमसे एक पल भी जुदा नहीं रह सकता। हदीद ने पता नहीं क्या कहानी बनाई थी, वो हंसते हुए इसे इन नेक ख्यालात से मुस्तफ़ीद फरमा रही थी। सरीन के जाते ही इसका दिल हर चीज़ से उच्चाट हो गया और रूम में आ गई। दोपहर का वक़्त था, इसीलिए अपने ही रूम में आके सो गई। जन्नैन की जब आँख खुली तो सामने ही हदीद की सूरत नज़र आई, जो बुक गोद में धरे बेड से टेक लगाए सो रहा था। और जन्नैन मैडम हमेशा की तरह टांगे इस पर दड़े महवे इस्तराहत थी। अचानक इसे अपने सोने के अंदाज पे जी भर के शर्मिंदगी हुई, मगर इंसानों की तरह सोना इसके बस में ना था। वो आराम से बिना आवाज़ किए उठी और रूम से बाहर निकल गई। दूसरे दिन जब वो यूनी पहुंची तो असद को अपना मुंतज़िर पाया, जिसने इन लोगों को देखते ही हाथ हिलाया था, जिस पर जन्नैन ने मुंह बनाया। जबकि हदीद ने शदीद गुस्से से ये मंजर हजम किया, क्योंकि इसे जन्नैन के तासरात तो ना नज़र आए थे। इसे आया तो बस इतना नज़र कि वो हंस के इससे मुखातिब था। हदीद इसको गुस्से से देखते डिपार्टमेंट पहुंचा और ख़ुद को रिलैक्स करने लगा। इसे समझ में नहीं आया कि इसे जन्नैन के साथ देखकर इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। और मिस्टर, क्या तकलीफ़ है तुम्हें? क्यों मुंह तुड़वाना है मुझसे? अपनी शक्ल घूम रखा करो, मेरे साथ फ्री होने की ज़रूरत नहीं, जन्नैन ने नखुवत से कहा और क्लास अटेंड करने चल दी। वो हमेशा की तरह लेट क्लास में आई थी। जब हदीद ने गुस्से से बोला, आइंदा मेरी क्लास में जो भी 10 मिनट लेट होगा, बराए मेहरबानी फिर बाहर ही रहे, खसूसन मिस जन्नैन साहबा। तो उसने अचंभे से देखा कि अंगारे क्यों चबा रहा है, पर वो लेक्चर स्टार्ट कर चुका था। फिर तो शायद जन्नैन की सख्ती का दिन था, जो हदीद ने इस पर सवालों की बौछार कर दी। वो नावल पढ़ा रहा था, वेटिंग फॉर गोडोट, और इसी के मुतल्लिक सवाल भी कर रहा था। जब हदीद ने पूछा कि गोडोट कौन है इस नावल का, तो जन्नैन ने मज़े से जवाब दिया, जब आपको नहीं पता गोडोट का, सैम्यूल को खुद को नहीं पता, तो मुझ मासूम को क्या पता। मैं तो बेचारी बंदी हूँ,
खुद किसी गोडोट का वेट कर रही हूँ जो इस पढ़ाई से मेरी जान छुड़ा दे। इसकी बात सुन के सबने छत फाड़ के कहे लगाए, जबकि हदीद ने जस्ट एक लफ्ज़ बोला, आउट, और उंगली का इशारा किया क्लास से निकलने का। तो जरनैन ने मुंह बनाते हुए बोली, मैं अकेली क्या करूँगी बाहर, इन तीनों को भी भेज दें। हदीद ने खा जाने वाली नज़रों से देखा और गुस्से से बोला, मिस जरनैन गो। तो वो भी झपाक से वहाँ से निकल गई, मबादा धक्के देकर ना निकाल दे। जरनैन बाहर निकली और कैंटीन की जानिब बढ़ गई, क्योंकि बेइज्जती के बाद भूख लगना नॉर्मल सी बात थी इसके लिए। वो जैसे ही अपनी महसूस जगह पे पहुंची, आगे असद को विराजमान देखा तो मुंह बनाती घास पे बैठ गई। जब असद भी बेशर्मी के रिकॉर्ड तोड़ता इसके साथ बैठ गया और बोला, आप बचपन से ही ऐसी हैं या ये अभी कोई टेक्निकल पार्ट हुआ है? तो जरनैन ने गुस्से से सुरख इसे देखा और हाथ लहरा के बोली, ना मैं कहती हूँ कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आपने तो बेशर्मी के रिकॉर्ड तोड़े हुए। आपकी समझ में नहीं आता कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। तो असद ने मुस्कुराते हुए कहा, ना मैं तो शर्म वाले दिन पैदा ही नहीं हुआ। तो जरनैन ने झंझला के इसे देखा और इसे इग्नोर करने के लिए हैंड्स फ्री लगा ली, पर शायद उसने बेशर्मी के सारे लेवल क्रॉस किए हुए थे। जरनैन ने ख्वाब शीशे का नावल, जो कि इसकी पसंदीदा राइटर का था, पे कॉन्सनट्रेट किया और थोड़ी ही देर में वो इर्द गिर्द का होश बुलाए नावल में गर्क हो गई। हदीद क्लास ऑफ करके जब बाहर निकला तो जरनैन का ख्याल आया, तो कैंटीन एरिया में जहाँ आया, जरनैन के साथ असद को बैठे देख के गुस्से से इसके करीब किया और जरनैन को बोला उठने को। जब जरनैन ने कोई जवाब ना दिया तो इसका जी चाह लगा इसके कानों के पीछे, मगर गुस्सा बर्दाश्त करते वॉकआउट कर गया, क्योंकि इसे लगा कि वो सुन के भी अनजान बन रही है। जरनैन को अचानक एक मैसेज मौसूल हुआ था जिसमें लिखा था कि रिता को चोट लगी है और इसे चलने में हेल्प चाहिए। तो वो जल्दी से रूम में पहुंची। जब रूम लॉक्ड हो गया तो जरनैन ने मुड़ के देखा तो असद को देख के चौंक गई। तुम यहाँ, रिता कहाँ है? तो वो मुस्कुरा के इसके करीब आया और इसका हाथ पकड़ लिया। तो जरनैन को जैसे शौक लगा। इसी वक्त रूम का दरवाज़ा खुला और हदीद और ऐशल अंदर दाखिल हुए। जरनैन का हाथ असद के हाथ में देख के हदीद तो जैसे अपने होश ही खो बैठा और आओ देखा न ताओ, इसका गिरबान पकड़ के मुक्का इसके नाक पे दे मारा तो जैसे जरनैन का सकता टूटा। हदीद और असद दोनों गुत्थम गुत्था थे। जब जरनैन ने हदीद को रोकने की कोशिश की, हदीद छोड़े इसे, पर वो होश में होता तो इसकी बात सुनता। वो एक दफ़ा फिर इसके करीब गई और इसे रोकने की कोशिश की। जब इसे धक्का लगा और वो नाजुक सी टहनी की तरह दूर जाके गिरी। इसका सर जोर से मेज से टकराया था और वो होश खो बैठी। ऐशल ने जब सिचुएशन सीरियस महसूस की तो इन्हें रोकने लगी। सर पर गलती सिर्फ इसकी तो नहीं, अगर उसने जरनैन का हाथ पकड़ा तो इसकी इजाज़त से ही पकड़ा होगा। जब हदीद अचानक मुड़ा और इसका मुंह जोर से अपने हाथ में दबोचा, अगर तुम औरत ज़ात ना होती तो मेरी बीवी पर इल्ज़ाम लगाने से तुम्हारी ज़ुबान सलामत ना होती। मेरी बीवी कैसी है ये तुमसे जानने की ज़रूरत नहीं मुझे, और तुम लोगों की साजिश में बहुत पहले से जान लिया था। मैं तो वेट कर रहा था कि आखिर तुम लोगों का प्लान क्या है, मगर तुम लोगों की तरह तुम लोगों का प्लान भी घटिया है। और असद को धक्का देकर परे किया, ले जाओ अपने शतरंज के मोहरे को, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तुम एक औरत हो। और याद आने पर जरनैन को तलाशा, नज़र मेज़ के पास बेहोश पड़े वजूद पे पड़ी तो इसे बाहों में समेटते बाहर भागा। ये तो शुक्र था कि यूनी करीब खाली हो चुकी थी। इक्का दुक्का स्टूडेंट थे जिन्होंने इसे हैरत से देखा। इससे पहले कि कोई सवाल करता, उसने जरनैन को गाड़ी में लिटाया और जन से गाड़ी दौड़ा गया। जरनैन को होश आया तो हदीद को सामने पाया। इसके साथ ही डॉक्टर भी था, इसीलिए उसने बमुश्किल अपने आंसू रोके। जब डॉक्टर ने हदीद को यकीन दिलाया कि वो अब ठीक है, बज़ाहिर कोई चोट न लगी थी, सर की पिछली साइड पे एक गड़ूम सा बन गया था, इसलिए डॉक्टर ने ओके का सिग्नल दिया और वो इसे लिए गाड़ी में आ बैठा। जब जरनैन ने बोलना शुरू कर दिया, मैं आपको कोई सफाई नहीं दूंगी। आपने क्या सोचा मेरे बारे में? मुझे नहीं जानना। आपको ऐशल से शादी करनी है, करें। मुझे छोड़ना है, छोड़ दें। मैं रब के अलावा किसी की जवाबदेह नहीं। जबकि हदीद ने इसकी सारी बकवास खामोशी से सुनी और चुपचाप गाड़ी चला दी। वो लोग घर पहुंचे तो नरमीन और सना परेशान सूरतें लिए इनका इंतज़ार कर रही थी। जल्दी से इन लोगों की तरफ बढ़ी। आप दोनों ठीक तो हैं? क्या हुआ था? क्यों हॉस्पिटल गए थे? एक ही सांस में बहुत से सवाल पूछ डाले। जब हदीद ने मुस्कुराते हुए दोनों की तसल्ली कराई
कि सब खैरियत है, बस तुम लोगों की दोस्त मोहतरमा का पाँव फिसल गया था, इसीलिए गए थे हॉस्पिटल। परेशानी की कोई बात नहीं। रोम की जानिब बढ़ गया। रात को सलीम शाह और दावर शाह दोनों आ गए और आते ही हदीद के रूम में चले गए। इन तीनों बीवियों को तजस्सुस हुआ कि क्या बात, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब वो तीनों नीचे आए, आते ही हदीद ने जरनैन को मुखातिब किया, आनी तुम्हें लेने आई है, तो जाओ आनी के साथ। जरनैन ने हैरानगी से देखा, पर अपनी माँ के साथ जाने का तसव्वुर ही खूबसूरत था, इसलिए जल्दी से बैग पैक करके ले आई और 8 साल बाद अपने बाप के घर में गई। वो जैसे ही घर में पहुंचे, दाऊद ने इसका वेलकम किया और इसे प्यार से गले लगाया, तो पहली दफ़ा इसकी आंखें अपनों के लिए नम हो गईं, वरना तो इन लोगों की बेहसी के बाद वो इन लोगों का नाम भी ना लेती थी। जब ही किसी के घिसटने की आवाज़ आई, तो उसने मुड़ के देखा जहाँ इसका बाप व्हील चेयर घसीटता आया था। जरनैन ने देखते ही मुंह मोड़ लिया और सरीन शाह को मुखातिब किया, अम्मा जान, मैं थक गई हूँ, मेरा रूम। तो सरीन शाह इसके साथ चल पड़ी। ज़ख्म को भरने में टाइम लगता है। रोम में पहुंच के सरीन शाह वापस आ गई, जबकि जरनैन बेड पे गिरी और आज के दिन की अजीबोगरीब सिचुएशन के मुतालिक सोचने लगी। अचानक हदीद का ख्याल आया, क्या वो मुझे गलत समझ रहा होगा? वो कैसे सोच सकता है मेरा किसी के साथ ताल्लुक़ हो सकता? इसकी आंखें भीग गई। वो अगर होश में होती इस वक्त, तो हदीद की अपने लिए पोजेसिवनेस देख के ज़रूर बेहोश हो जाती और अब गलतफहमी का शिकार ना होती। जरनैन हदीद को सोचते सोचते नींद की वादी में उतर गई। वो कब तक सोचती रही, इसे अंदाज़ा नहीं हुआ। आंख सरीन शाह के ममता भरे एहसास से उभरी। सरीन शाह इसके माथे पे बोसा देते उठ रही थी, जब उसने इनका हाथ पकड़ के होंठों के साथ लगाया और सर इनकी गोद में धरा, तो सरीन शाह ने भी प्यार से इसके सर पे हाथ फेरा। अम्मा जान, हदीद कैसे माने मुझे यहाँ भेजने के लिए? तो सरीन शाह ने इसे प्यार से देखा, बस कहा इसको कि इंसान के बच्चों की तरह मेरी बेटी को आने दे, आखिर इसके भाई की खुशी है। तो मान गया। सच्ची? उसने गर्दन घुमा के देखा। मुच्ची मेरी जान। सरीन ने इसकी नाक दबाई। अब उठ जाओ, मगरिब होने वाली है। वो मगरिब की नमाज़ पढ़ चुकी तो ख्याल फिर से भटक के हदीद की जानिब किया। इसके पास थी तो परवाह ना थी, दूर हुई तो इसका ही ख्याल था। वो सर झटकती डाइनिंग हॉल में आ गई, जहाँ सब इसका इंतज़ार कर रहे थे। इसको देखते ही ज़ैन शाह की आंखों में चमक उतरी, मगर वो तो सबको सलाम करके चेयर घसीट के बैठ गई। एक नज़र भूले से भी इस पे ना डाली, जबकि वो इसको देख के अपनी आंखें सैराब कर रहा था। इसी के बेहद इसरार पर सरीन शाह जरनैन को लेकर आई थी, क्योंकि वो इससे मिलना चाहता था, माफ़ी मांगना चाहता था। क्योंकि वक्त का पहिया जब घूमता है तो फ़िरौन को भी शिकस्त होती है, और वो अपने वक्त में फ़िरौन बन गया था, जिसने अपनी अना और ज़िद की जंग में अपनी इकलौती बेटी को कुर्बान किया था और पछताया ना था। वो शायद अब भी ना पछताता, अगर कुदरत ने इसे इसकी औकात ना दिखाई होती। वो सब खाना खा चुके तो दाऊद और दावर ने इसे कार्ड्स खेलने की पेशकश की, जिसे उसने मुस्कुरा के कबूल किया, क्योंकि वो अपनी नींद पूरी कर चुकी थी। सरीन शाह भी इनके खेल में शामिल थी, क्योंकि इन दोनों का हर काम सरीन शाह के बिना अधूरा होता। जरनैन फुल चीटिंग कर रही थी, जबकि वो दोनों इसकी खुलेआम चीटिंग पर चिल्ला रहे थे, जबकि सरीन शाह मुस्कुरा के देख रही थी और दुआ कर रही थी कि यूं ही इसका घर खुशियों से भरा रहे। अम्मा जान, मैं आपके साथ सोऊंगी। तो सरीन ने इसे प्यार किया और बोली, क्यों नहीं मेरी जान, और रूम की तरफ बढ़ी। आज दाऊद और नरमीन की मंगनी थी। जरनैन ने डल गोल्डन कलर की मैक्सी पहनी थी और साथ में मैचिंग ज्वेलरी। आंखों में भर भर के काजल लगाए वो तैयार थी। वो लोग जब आगा हाउस पहुंचे, तो अमजान और सना के साथ बहुत सी रिश्तेदार लड़कियों ने इन लोगों का वेलकम किया। जरनैन की नज़रें हदीद को ढूंढ रही थी, मगर वो कहीं दिख नहीं रहा था। जरनैन ने इसके रूम की जानिब कदम बढ़ाए, तो वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। जरनैन ने अलमारी में मुंह दे लिया, जैसे कुछ तलाश कर रही, तो नज़र ज्वेलरी बॉक्स पर पड़ी, तो वो उठा के देखने लगी। इसकी तैयारी मुकम्मल थी, सिर्फ पायल नहीं पहनी, इसीलिए जब इन पर नज़र पड़ी तो वही उठा के पहनने लगी। जब हदीद वॉशरूम से निकला, तो सामने ही जरनैन का लिश्कारा मारता वजूद था, जिसे नज़रअंदाज करना ड्रेसिंग टेबल की जानिब बढ़ा, जबकि जरनैन के अंदर छन से कुछ टूटा। वो इसके लिए इतना सच धज के आई थी, और उसने एक निगाह भी न डाली थी, जब वो अहानत के एहसास से एक पायल पहन दूसरी वहीं छोड़ चली गई। इसके बाहर निकलते ही हदीद ने गहरी सांस भरी। वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर आया, तो इसकी नज़रों ने वापस पलटने का नाम न लिया।
पर इससे पहले कि ज़रनैन देखती उसने बमुश्किल अपनी नज़रों को काबू किया जो इसके खूबसूरत सरापे से लिपट के रह गई थी। उसने पहली दफ़ा इसे खूबसूरत कांटों से लेस देखा था, वरना तो लापरवाह सा हुलिया बनाए उछल कूद में बिजी रहती। हदीद ने अपनी तैयारी को आखिरी टच दिया और बाहर चला गया। ज़रनैन का दिल हर चीज़ से उचाट हो गया था। जिसके लिए रूप संवारा था उसने एक नज़र भी ना डाली। अंदर ही अंदर कुर्ते होंठों पे मुस्कुराहट ला के सबसे मिल रही थी, वरना जी चाह रहा था सब छोड़ छाड़ के चली जाए। दाऊद ने खुद नरमीन के हाथ में अंगूठी डाली, जिस पर सब ने मिल के होटिंग की और फिर तस्वीरें बनाने का सेशन स्टार्ट हुआ। तो हदीद को भी सब ने स्टेज पे बुलाया, जो कहीं ना कहीं बिजी था। हदीद ज़रनैन के साथ आके खड़ा हुआ। जब एक पिक बनने के बाद शहरयार ने कहा, क्यों भाई, भाभी के साथ नाराज़गी है जो इतने दूर दूर हो? तो हदीद ने अचानक ज़रनैन के कंधे पे हाथ रख के करीब हुआ। ज़रनैन ने सर उठा के इसे देखा तो इसी पोज में पिक बन गई। बहुत सी यादगार तस्वीरों के सब फ्रेंड्स में गानों का मुकाबला हुआ और रात की तक वापसी हुई। सरीन शाह लोगों को आगा जान ने रुकने का बोल दिया तो वो भी वहीं रुक गए। सब अपने अपने रूम में चले गए तो वो भी अपने रूम में आई। जहाँ हदीद ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा था तो उसने भी अपना कंबल उठाया और सोफे पर आ गई। नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी और वो हदीद के सलूक के बारे में सोच रही थी। सुबह सबकी आंख लेट खुली थी। नाश्ता करके सरीन शाह ने जाने के लिए इजाज़त मांगी। जब ज़रनैन भी बैग लिए आ गई, अम्मू जान मैं भी साथ जाऊंगी, तो सरीन शाह ने हदीद को देखा। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, ज़रनैन ने जल्दी से कहा, हदीद से मैंने इजाज़त ले ली, वो कह रहे हैं कुछ दिन ठहर जाओ। जबकि हदीद ने जस्ट इस बात में सर हिला दिया। ज़रनैन की आंखों में मिर्चें सी भरी, तो क्या मेरी इसकी नज़र में इतनी बुक्कत भी नहीं कि झूठे मुंह ही रोक लेता। वो बारी दिल से वहाँ से चल दी। वो जैसे ही जैन मंशन में पहुंची तो जैसे जैन शाह इन्हीं के इंतज़ार में था। जब ज़रनैन मुँह फेर इसके करीब से गुजरने लगी तब जैन शाह ने इसका हाथ थाम लिया। ज़रनैन ने पहले तो हैरत से इसकी जानिब देखा, फिर गुस्से से इसका हाथ झटक दिया। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की? आप लगते ही क्या है मेरे? वो गुस्से से चिल्लाई। किस हैसियत से आपने मेरा हाथ पकड़ा? मेरा हर रिश्ता टूट चुका है आपसे, मिस्टर जैन शाह। इसी दिन मेरा बाप मर गया था जब आपकी अना ने मुझे 2 कौड़ी का किया था। क्या हैसियत थी मेरी आपकी नज़र में? समझ लिया था मैंने 11 साल में। आपकी कौन कौन सी ज़्यादती भूलूं? क्या ये भूल जाऊं कि आपने कभी पैदा होने से लेकर 11 सालों तक शायद ही कभी देखा देखा भी उसी दिन जिस दिन मुझे खुद पे कुर्बान करना था। क्यों हम औरतें आपके लिए इतनी बेहैसियत होती हैं? क्या है आप लोगों की औकात? जो गुनाह तुम मर्द लोग करो, सजावार औरत हो। क्या खुदा हो जो तुम लोग फैसला करते खुद क्यों नहीं मर जाते हम औरतों को कुर्बान करने के बजाय? अगर तुम लोगों में गैरत हो तो खुद मर जाओ, मगर अपनी बहन बेटी कुर्बान ना होने दो। पर तुम लोगों को तो कत्ल करने हैं, दुश्मनियाँ निभानी हैं। इतने ही गैरतमंद होते हो तो खुद हौसला किया करो, अपने किए का भुगतान खुद भुगता करो, ना कि हम नाचीज़ औरतों की पनाह लो। खुददारा, इस जहाँ का खुदा भी इसी को रहने दो, खुद मत बनो। और रोते हुए अपने रूम में चली गई। हदीद, जो आगा जान के कहने पर इन लोगों के पीछे ही इसे लेने आया था, वापस मुड़ गया जब जैन समेत 2-4 नफूस बुत बने बैठे थे। कह तो वो सच ही गई थी। औरत मर्द की गैरत होती है, चाहे बेटी हो, माँ हो, बहन हो या बीवी। तो क्यों अपनी जान बचाने के लिए इस गैरत को नीलाम किया जाता है? कब तक औरत मर्द की करनी भुगते? मर्द अपने जुर्म की सज़ा मर्द की तरह भुगते, ना कि कायर की तरह औरत की आड़ ले। बहुत से दिन इसी टेंशन के माहौल में गुजर गए। जब जैन ने फिर से ज़रनैन से माफ़ी मांगी तो वो भी अपनी अना को कायम ना रख सकी। आखिर को इसका बाप था जो पहले ही अपने किए जुर्म की सज़ा इसी दुनिया में पा चुका था, और माफ़ करने वाला तो रब के बहुत करीब होता है। उसने जैन को माफ़ किया। जैसे खुशी की लहर सब में दौड़ गई और जैसे सरीन शाह की ज़िंदगी में छुपा आखिरी कांटा भी निकल गया। हर रोज़ कभी तीनों भाइयों के हंसने तो कभी लड़ने की आवाज़ें आती। वैसे भी यूनी से इन्हें फ्री कर दिया गया था, इसीलिए वो पढ़ाई में बिजी रहती। जब पढ़ते हुए अचानक इसे चक्कर आया और वो बेहोश हो गई। सरीन शाह इसे हॉस्पिटल लेके गई तो सरीन शाह की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा जब इसे पता चला वो नानी बनने वाली है। जबकि ज़रनैन को समझ ना आई वो खुश हुई या गमगीन, क्योंकि वो तो ये भी ना जानती थी हदीद का क्या रिएक्शन होता। इसलिए उसने सरीन शाह को मना किया किसी को भी बताने से। तो सरीन शाह ने हैरत से इसे देखा तो वो जल्दी से मुस्कुरा के बोली, मैं खुद बताऊंगी ना, अभी सेमेस्टर तो होने दे, वरना आगा जान और अमजान मुझे आके ले जाएंगे।
उसने जल्दी से बहाना घड़ा, जिस पे सरीन शाह भी खुश हो गई, जबकि वो आराम से पेपर देने लगी। जिस दिन इसका आखिरी पेपर था, इसी दिन अम्मजान और आका जान इसे लेने आ गए। सनीन इन लोगों की खुशी की खातिर आ गई, वरना तो हदीद की बेअतनाई इसे रोज़ रुलाती। सरीन शाह ने इसकी प्रेगनेंसी के बारे में अम्मजान को बता दिया था, जिससे सब बहुत खुश थे। रात देर तक वो नरमीन और सना के साथ बैठी रही। जब उन्होंने नींद आने पर इसे बाहर की राह दिखाई, तो वो जल्दी उठती इन्हें गालियाँ निकालती रूम में गई, जहाँ हदीद गहरी नींद सो रहा था। तो वो इसे इतने दिन के बाद देखकर काफ़ी देर तकती रही और फिर सोफे पे जाके सो गई। सुबह आँख खुली तो ज़रनैन ने खुद को सोफे से नीचे महवे इस्तरात पाया। रात को किसी वक्त वो शायद नीचे गिर गई थी। उसने बाल समेटते बेड पर नज़र डाली जो खाली था। मतलब वो भी मुझे नीचे गिरे देख चुका है। इसे शर्मिंदगी ने घेरा और नमाज़ पढ़ने उठ बैठी। हदीद रूम में नहीं था। सर्दी भी ज़ोरों पर थी। वो नाश्ते पर बाहर आई तो सब इसका वेट कर रहे थे। सब इसका यूँ ख्याल कर रहे थे जैसे वो कांच की गुड़िया एक वही बेअतना था जिससे सबसे करीबी रिश्ता था। नाश्ता करते ज़रनैन की नज़रें हदीद को ढूंढ रही थी, जो रूम में भी ना था। और अब नाश्ते पर भी ज़रनैन का पूरा दिन बेकल गुजरा। एक तो तबीयत गिरी गिरी सी थी, ऊपर से हदीद का अता पता ना था। वो बेचैन सी यहाँ वहाँ चक्कर लगाती रही। पर रात का खाना खा के सब अपने कमरों में चले गए, तो वो भी अपने कमरे में आ गई और सोफे पर टेक लगा के इस दुश्मन जाँ की बेहिसी के बारे में सोचते हुए कब आंख लगी खबर ना हुई। हदीद रात देर को घर पहुंचा। ज़मीनों का कोई मसला था जिसमें आजकल वो मसरूफ़ था। रूम में आया तो ज़रनैन को बैठे बैठे सोया पाया, तो उसकी बेआरामी का सोचकर इसे बाहों में उठाया और बेड पे लिटाने लगा। जब ज़रनैन की आंख खुल गई और खुद पे झुके हदीद को परे धक्का दिया। इसे नहीं पता था वो क्या कर रही, क्योंकि सोते में वो हड़बड़ा गई और डर के इसे परे धकेल दिया। जब हदीद ने इसे बाजू से पकड़ कर खींचा, मसला क्या है तुम्हारा? तुम कौन सा दुनिया की अनोखी बीवी हो जिसे शोहर ने छू लिया तो गुनाह हो जाएगा? जब ज़रनैन ने बेदू जवाब दिया, मोहब्बत से मांगेंगे तो सब कुछ निछावर कर दूंगी, पर मैं कोई पपिच नहीं जिसे जब चाहा जहाँ जहाँ मोड़ लिया। जीती जागती इंसान हूँ, कोई आपका दिल बहलाने वाली गुड़िया नहीं जिसे आप अपनी ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करते। बहुत बुरा लगता है मेरा छूना तुम्हें। हदीद ने इसका हाथ झटका। टेंशन मत लो, जा रहा हूँ हमेशा के लिए तुम्हारी जान छोड़ के अमेरिका। और अपना बैग उठा के अलमारी से कपड़े निकाल निकाल के बैग में भरने लगा, तो जैसे ज़रनैन की जान किसी ने अपनी मुट्ठी में ले ली और उसने ये अना की जंग में हारने का फैसला किया और इसके करीब आई और कपड़े इसके हाथ से लिए। जब उसने इसके हाथ झटक दिए, अब और क्या बाकी है? हदीद प्लीज़ मत जाए। क्यों ना जाऊँ? अचानक हदीद ने इसके दोनों बाजू पकड़ के खींचे तो वो दर्द से बिलबिला उठी। हदीद, अगर आप ना रुकें तो मैं कैसे जीऊँगी? थक गई हूँ लड़ते लड़ते। आपसे दूरी अब सह नहीं सकूँगी। आपका वजूद मुझ में सांसें ले रहा है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर आप मुझे छोड़ गए तो मैं। इसके अल्फाज मुंह में ही थे जब हदीद ने इसके होंठों पे हाथ रखा। कौन कमबख्त तुम्हें छोड़ के जा रहा है लिटिल फ्रॉगी? इसे करीब करते हुए बोला। तो इसलिए रोक रही हो मुझे? हदीद ने हपकी दिखाई। यानी तुम्हें मेरी तो कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट बेबी के लिए रोक रही। तो ज़रनैन ने जल्दी से कहा, मैंने कहा वैसा बोला? मैं तो इसलिए रोक रही क्योंकि मुझे अपने बेबी के बाबा से मोहब्बत है। और अपना सर इसके सीने से टकरा लिया। तो हदीद इसकी मोहब्बत के खूबसूरत अंदाज पे मुस्कुरा उठा और इसको बाहों में भरते हुए कहा, मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ, बस ज़िद है। अना का परचम बुलंद रखने की कोशिश के इजहार नहीं कर सका। तुम मेरी ज़रूरत नहीं मोहब्बत हो जिससे मुझे इश्क होने लगा है। जबकि ज़रनैन इसके इजहार से खुद को मोतबर समझने लगी, क्योंकि मोहब्बत में मान जिसे मिलता है वही आसूदा होता है। अगर मोहब्बत हो तो अना को मार देना चाहिए। आज तो कोई पाबंदी नहीं है ना? हदीद ने मुस्कुराते हुए इसका चेहरा अपने हाथों में थामा, तो ज़रनैन का सर बमुश्किल ना में हिला। जब हदीद ने इसे बाहों में समेटते हुए कहा, आज तो कर दो इकरार कि तेरी रूह में उतर जाऊं, समेट लूँ तुझको खुद में कि रूह को मुअत्तर करूं, तेरी जुल्फ़ों में उतरूं शाम की तरह, तेरे चेहरे पे सवेरा कर जाऊं, बरस जाऊं किसी बादल की तरह, तेरी रूह को जल थल कर दूं। इसकी शायरी की कोशिश पर ज़रनैन की हंसी निकल गई और चांद इसकी हंसी पे मुस्कुरा उठा। खुशियाँ और गम ज़िंदगी का हिस्सा है और अंधेरे के बाद ही उजाला है।